जय हिंद बच्चों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग जो है 7th की बुक से लेसन 14 है, इसको हम रीड करेंगे। ये है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो आइए इसको पढ़ते हैं। A long time ago in England there lived a woman called Florence Nightingale. She became very famous as a nurse. She did a lot to help sick people so that they get better. Florence was born in a good family. She got her name from the city Florence in Italy, where she was born on May 12, 1820. Florence grew up in England. She was taught at home by her father. She learnt English, Italian, Latin, German, French languages and studied history and philosophy. Florence traveled to many countries with her sister and parents. She also wrote lots of notes to herself. One day she wrote, "Today God spoke to me and called me to his service." She made up her mind to do something useful in life. Florence wanted to help other people. She wanted to become a nurse, but her parents and her sister did not want her to become a nurse. Her parents hoped to settle her comfortably by getting her married to a rich man. In those days, ladies from good families did not become a nurse. They were paid very little money. They got little respect from the society. The hospitals in those days were no better. Little attention was paid to cleanliness. The seats on the beds were very never changed, and nobody used to take care of the patient's hygiene. Florence did not mind all these. She secretly planned to become a nurse. She got the first chance when her grandmother fell ill. Florence stayed at her side and looked after her. Gradually, she began to help the poor people of a village nearby. Florence soon found that she could not do her work properly as she was. Not trained. So she began to read books about medicine. A few years later, she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital. When she returned to England, she became the superintendent of the organization care of the sick in London. She began to train nurses and became quite famous. In 1854, the Crimean War broke out. The government sent Florence Nightingale to a place called Century in Turkey. She was made in charge of a team of 40 nurses. The hospital at Century was full of soldiers injured in the war. Florence worked very hard to improve the condition of the hospital. She cleaned up the hospital and built a new kitchen which served better food. With her own money, she bought new seats and clothes for the patients. She spent many hours talking to them. She tried her best to make them comfortable and happy. To serve the patient at night, she used to carry a lamp in her hand. This is how she got the name the Lady with the Lamp. Florence worked so hard that she became very ill, but she refused to return to England. In 1860,
She started the Nightingale School for Nursing. Because of her efforts, nurses again gained respect all over the country. Florence Nightingale died on August 13, 1910 in London. She was the one who brought significant changes in the field of nursing. तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है. कठिन शब्द जो इसमें दिए गए हैं, देखें यहाँ पे है सीड्स, यहाँ पे वर्ड है, इसका उच्चारण दिया गया है, इसकी मीनिंग दी गई है. प्रॉपरली, प्रॉपरली, वार ब्रोक आउट, है ना, सेक्रेटली, कंफर्टेबल, सुपरिंटेंडेंट और ऑर्गेनाइजेशन. तो बच्चों इसमें जो है जो इतने वर्ड्स दिए गए हैं ये तो कठिन शब्द हैं, राइटर ने अपनी तरफ से लिख के दे दिया है. लेकिन जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं इसी तरीके से आप एक कॉपी में अपने कॉलम बना लीजिए. वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशंस एंड मीनिंग, शब्द, उच्चारण और अर्थ. और ये जो है जो कठिन शब्द हैं आप इधर लिखते चले जाइए. और जैसे मैंने पढ़ के बताया है ऐसे ही आप उन शब्दों की जो का उच्चारण है उसको यहाँ पे लिख लीजिए. उसकी मीनिंग मैं बता दूंगा, नहीं तो आप गूगल से सर्च करके यहाँ पे लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए. इस तरीके से आप ये पाठ पूरा पढ़ सकते हैं, इसकी मीनिंग भी जो है जानकारी कर सकते हैं. तो चलिए मीनिंग जान लेते हैं इसकी कैसे क्या है. फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नाम है. फ्लोरेंस नाइटिंगेल बहुत समय की बात है, ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है. इन इंग्लैंड में देयर लिव्ड ए वुमन, एक औरत रहती थी जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था. सी बिकेम वेरी फेमस एज ए नर्स, और वह वहाँ पे एक नर्स के रूप में बहुत फेमस हो गई थी. सी डिड ए लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर. उन्होंने बहुत ढेर सारा वर्क किया उन लोगों के लिए जो बीमार थे ताकि वो ठीक हो जाएं. फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन ए गुड फैमिली. फ्लोरेंस का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था. सी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली. इटली में एक सिटी है जिसका नाम फ्लोरेंस है, उसके नाम पे इनका नाम फ्लोरेंस रखा गया. वेयर सी वॉज बॉर्न ऑन मई 12, 1820. और इनका जन्म जो है वहाँ पे 12 मई को 1820 में हुआ था. फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड, है ना. फ्लोरेंस जो है इंग्लैंड में बड़ी हुई. सी वाज टॉट एट होम बाय हर फादर. उनको उनके पिताजी ने घर पर ही पढ़ाया. सी लर्नड इंग्लिश, इटालियन, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच लैंग्वेजेस. उन्होंने जो है इंग्लिश को, इटालियन, लैटिन, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं को सीखा. एंड स्टडीज हिस्ट्री एंड फिलोसफी, और इतिहास और दर्शन, फिलोसफी है ना, दर्शन भी उन्होंने पढ़ाई की. फ्लोरेंस ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज विद हिज सिस्टर. फ्लोरेंस ने जो है बहुत सारे देशों की यात्रा की अपने बहन के साथ. एंड पेरेंट, और पिता के साथ. अपने बहन और पिता के साथ उन्होंने बहुत सारे देशों की यात्रा की. सी आल्सो रोट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हरसेल्फ. और उन्होंने जो है बहुत सारा लेख भी लिखा अपने हाथों से. वन डे, एक दिन, सी रोट, उन्होंने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी. एक बार मतलब उन्होंने लिखा कि भगवान ने मुझसे कहा है, भगवान गॉड स्पोक टू मी, भगवान ने मुझसे बात किया. एंड कॉल्ड मी, और मुझे टू हिज सर्विस, अपनी सेवा के लिए मुझे पुकारा. सी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ. और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने जीवन में कुछ यूजफुल करेंगे. फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल. फ्लोरेंस अन्य लोगों की हेल्प करना चाहते थे. सी वांटेड टू बिकम ए नर्स, और वह एक नर्स बनना चाहती थी. बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट टू हर टू बिकम ए नर्स. लेकिन उनके माता पिता और उनकी बहन नहीं चाहती थी वो एक नर्स बने. हर पेरेंट्स होप्ड टू सेटल हर कंफर्टेबली बाई गेटिंग हर मैरिड इन टू ए रिच मैन. और उनके माता पिता और उनकी बहन चाहती थी, है ना, हर पेरेंट्स होप्ड, उनके पिता ऐसा करते थे, माता पिता, कि वह एक अमीर आदमी से शादी करके अच्छे तरीके से सेट हो जाए और बढ़िया जीवन जिए. इन दोज डेज, उन दिनों, लेडीज़ फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्स. अच्छे घरों की महिलाएं नर्स नहीं हुआ करती थीं. दे वेर पेड वेरी लिटिल मनी. उनको वो बहुत कम पेमेंट पाती थी. दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी. और समाज के द्वारा भी उनको बहुत कम सम्मान मिलता था. द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वेर नो बेटर.
और हॉस्पिटल भी उस समय बहुत अच्छे नहीं थे। लिटिल अटेंशन वाज पेड टू क्लीननेस, सफाई पे बहुत कम ध्यान दिया जाता था। द सीट्स ऑन द बेड्स वेर नेवर चेंज्ड, और जो बेड होते थे उनको, उनकी सीट्स को, उनकी चादर को कोई बदला नहीं जाता था। एंड नो बडी यूज टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स हाइजीन, और पेरेंट्स की जो स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं होती थी लोगों को। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज सेक्रेटली प्लान्ड। फ्लोरेंस ने इन सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं की। सी सेक्रेटली प्लान, उन्होंने बहुत ही चुपके से एक प्लान किया टू बिकम ए नर्स, नर्स बनने का। सी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल, और उनको पहला चांस तब मिला जब उनकी माताजी बीमार पड़ी। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड, फ्लोरेंस उनके पास रुकी एंड उनकी देखभाल किया। ग्रेजुअली शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ ए विलेज नियर बाय। ग्रेजुअली शी बिगेन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ ए विलेज नियर बाय, और धीरे धीरे उन्होंने जो है गांव के आसपास के लोगों की भी हेल्प करना शुरू कर दिया। फ्लोरेंस soon found that she could not do her work properly. फ्लोरेंस ने महसूस किया कि वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हैं, as she was not trained, क्योंकि उनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं था। So she began to read book about medicine. इसलिए उन्होंने दवाओं के बारे में पढ़ना शुरू किया। A few years later, कुछ साल के बाद she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital, और उनको जो है एक हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला जर्मनी के नर्सिंग के बारे में पढ़ाई करने के लिए। When she returned to England, जब वो इंग्लैंड से वापस आई, she became the superintendent of the organization Care of the Sick in London. लंदन का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था केयर ऑफ द सिक, उसका वो सुपरिटेंडेंट बन गई। She began to train nurses and became quite famous, और उन्होंने नर्सों को ट्रेनिंग देना शुरू किया और फेमस हो गई। In 1854, the Crimean War broke out. In 1854, Crimean War broke out. क्रीमियन वार शुरू हो गया। द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू ए प्लेस कॉल्ड सेंट्री इन टर्की में एक जगह थी जिसका नाम सेंट्री था, वहाँ पे इनको भेजा गया। सी वॉज मेड द इंचार्ज ऑफ ए टीम ऑफ 40 नर्सेस, उनको जो है 40 है ना नर्सों का इंचार्ज बनाया गया था। द हॉस्पिटल एट सेंट्री वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन द वार, और उस युद्ध में घायल सैनिकों से वह हॉस्पिटल भरा हुआ था। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की हालत को उन्होंने सुधारने के लिए बहुत मेहनत की। सी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल्स एंड पुट ए न्यू किचन, उन्होंने हॉस्पिटल को साफ कराया और एक नया किचन बनवाया। विच सर्व्ड बेटर फूड, जो एक बढ़िया भोजन बेहतर खाना देने में सक्षम था। विद हर ओन मनी, अपने पैसे से सी बॉट न्यू सीट्स एंड क्लॉथेस फॉर द पेशेंट्स, पेशेंटों के लिए नए कपड़े और सीट्स लेके आई। सी स्पेंट मैनी आवर्स टॉकिंग टू देम, और वह उनके साथ बात करने में काफ़ी समय भी बिताई। सी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड हैप्पी, उनको ठीक करने में, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक और खुश कर रखने के लिए उन्होंने उनके साथ काफ़ी समय काफ़ी प्रयास किया, या प्रयास किया। टू सर्व द पेशेंट्स एट नाइट्स, रात में पेशेंटों की सेवा करने के लिए। सी यूज टू कैरी ए लैम्प इन हर हैंड, वो अपने हाथों में लैंप लेके चलती थी। दिस इज़ हाउ सी गॉट द नेम द लेडी विद द लैम्प, इस तरीके से उनको जो है एक नाम मिल गया जिसका नाम जो था द लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट सी बिकम वेरी इल, फ्लोरेंस ने इतना मेहनत किया कि वो बीमार पड़ गई। बट सी रिफ्यूज टू रिटर्न टू इंग्लैंड, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड वापस आने से मना कर दिया। इन 1860 में सी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेस, और 1860 में उन्होंने जो है
नर्सों के लिए एक स्कूल स्टार्ट किया। बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स नर्सेस गेन्ड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री। और उनके प्रयासों से ऑल ओवर कंट्री, पूरे देश में नर्सों को सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डायड ऑन अगस्त 13, 1910 इन लंदन। और 1910 में 13 अगस्त को लंदन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का देहांत हो गया। शी वॉज द वन हु बॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। She was the one who brought significant changes in the field of nursing. वह थी जिन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए, महत्वपूर्ण जो है उन्होंने चेंजेस प्रदान किया इस क्षेत्र में। तो इस तरीके से चैप्टर हमने पढ़ लिया है। और बच्चों इस पार्ट को जो है आप बार बार रिपीट करिए, इसको आप लगातार अभ्यास करते रहिए जब तक आपको ठीक से पढ़ना ना आ जाए। और इसकी मीनिंग जब याद कर लेंगे तो इसका भाव जो है, इसका अर्थ भी आपको समझ में आने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपके काम की हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही तमाम वीडियो मैं बना रहा हूँ जिससे आपकी हेल्प होने वाली है। तो इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।